पंजाब मामले के इंचार्ज हरीश रावत ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नाल मुलाकात की है। पीटीए को लेकर के प्लान पावर परचेज एग्रीमेंट्स को लेकर के पंजाब गवर्नमेंट ने, माननीय मुख्यमंत्री ने मुझे बताया कि कुछ एक्शन लिए गए हैं। असल मुद्दा जिहड़ा सी कि वड्डियां मच्छियां कौन ने, जिहड़ी रिपोर्ट हुण तक बंद पई है सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय दी ते हरप्रीत सिंह सिद्धू दी, वो क्यों नहीं खुल रही? माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे बताया है कि वो और उनकी गवर्नमेंट पहले भी प्रोएक्टिव रहे हैं और उन्होंने 3 कानूनी पास नहीं करवाए। जे कांग्रेस हाई कमान ने कोई रिजल्ट लेना है तो इन्हां सारिਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸੁਰ ਅਲਾਪੀ ਗਏ ਫਿਰ ਇਹ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੋਰ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸੀ ਕਾਟੋਕਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ 3 ਘੰਟੇ 6ਵਾਂ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛਕਿਆ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 18 ਨੁਕਾਤੀ ਮੁੱਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਨੁਕਾਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਅਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ? ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਡਿਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਆਇਆ? ਕੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਦੱਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ, ਇੰਨੀ ਹੈਰੋਇਨ ਫੜ ਲਈ, ਫਲਾਨਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਢਿਮਕਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਕੌਣ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀ? ਕੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਉਹ ਦਿਨ ਬਿਮਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਕੋਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇਸ ਲੱਗਣਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ? ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਦਭਾਗਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੜਨੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਾਊਗੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਨਕਾ ਵੱਜਿਆ ਅਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇਬਰੀ ਜੀ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਡੰਗ ਜਿਹਾ ਟਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਵੜਦਾ, ਜੋ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸੁਰ ਅਲਾਪੀ ਗਏ ਫਿਰ ਇਹ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੋਰ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। मुख्यमंत्री पंजाब से के पास ये जानने के लिए आया था कि हमने 3 मेंबर्स कमेटी ने और EICC ने उनको एक 18 सूत्री 18 पॉइंट्स दिए थे जिन पर हम लोग एक्शन चाहते थे।
जिनमें से एक इशू जिसको पंजाब बरगाड़ी इशू के रूप में जानता है, क्योंकि वो एक हाईली सेंसिटिव लीगल इशू है और माननीय हाई कोर्ट उसमें पहले ही कुछ ऐसी बात कह चुका है जिससे मैं ये समझता हूँ कि पब्लिक डिस्कोर्स के जरिए उस मामले को लॉजिकल कंक्लूजन में पहुंचाना कठिन हो जाएगा। इसलिए हमने माननीय चीफ मिनिस्टर से आग्रह किया कि वो अपने समझ से जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल लोग हैं उनसे जो यथासंभव जो संभव कानूनी तरीके से संभव एक्शन है उसको इनिशिएट करवाएं और उसमें बहुत सारा एक्शन इनिशिएट। दूसरा मामला जिसको प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उठाया था माननीय मुख्यमंत्री के साथ, वो था कि 3 कानूनों को जो कृषि कानून है भारत सरकार ने बनाए हैं उनको निरस्त किया जाए। क्योंकि ये एक संवैधानिक प्रश्न है, इसमें राज्य सरकार की क्या सीमा है और संविधान क्या कहता है वो सब कुछ देखना पड़ेगा। मगर फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे बताया है कि वो और उनकी गवर्नमेंट पहले भी प्रोएक्टिव रहे हैं और उन्होंने 3 कानूनी पास नहीं करवाए, बल्कि उन कानूनों को लेकर के यथासंभव राजनीतिक दबाव भी बनाया। और ये भी एक तथ्य है कि देश भर में जितनी भी सरकारें आई हैं उन सरकारों ने पंजाब के कानूनों को बनाए हुए विधानसभा द्वारा पारित कानूनों को आधार बना करके जो है आपने वहाँ भी कानून बनाए हैं जिससे किसानों के पक्ष में देश दिखाई दे, वातावरण दिखाई दे। क्योंकि गवर्नर बैठे रह गए, उनके आकाओं ने उनसे कहा नहीं इन कानून इस पर बैठे रहो, कुछ इसको भेजना नहीं है, कुछ करना नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने आग्रह किया है कि वो फिर से गवर्नर से मिलें और इसमें क्या संभव हो सकता है जिससे हम प्रेशर भी क्रिएट करें और किसानों को ये भरोसा दें कि हम सब लोग, सारा देश उनके साथ खड़ा है, तो उसके लिए कुछ कदम। तीसरी बात है ड्रग्स को लेकर के, और मैंने जानकारी दी है, जो तथ्य मेरे सामने आए हैं, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स भी हैं ये शो करने के लिए। पंजाब गवर्नमेंट ने इस दिशा में बहुत एग्जम्पलरी वर्क किया है, मगर एक व्यक्ति जो किसी तरीके से हाई कोर्ट के सामने कुछ प्रश्न है, उसके आड़ में एक्शन से बच जा रहा है, तो हमने कहा कि माननीय हाई कोर्ट के सम्मुख हम अपनी बात को रखें और ताकि ड्रग्स के खिलाफ जो पंजाब की लड़ाई है वो एक निर्णायक मुकाम तक पहुंच सके और जिसको सारा पंजाब ड्रग माफिया के रूप में जानता है उसके खिलाफ कार्रवाई। पीपीए को लेकर के पावर परचेज एग्रीमेंट्स को लेकर के पंजाब गवर्नमेंट ने, माननीय मुख्यमंत्री ने मुझे बताया कि कुछ एक्शन लिए गए हैं और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत जल्दी पंजाब गवर्नमेंट यहाँ के आम उपभोक्ताओं को भी अभी केवल SC ST वर्ग को, गरीब तबके को हम 200 यूनिट तक बिजली फ्री दे रहे हैं। मैंने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि भाई
AICC भी चाहती है। हम मैनिफेस्टो में कल जो कुछ कहेंगे वो एक अलग पार्ट है, मगर इस समय हम गवर्नमेंट में हैं। हम बानगी के तौर पर, शुरुआती तौर पर आम पंजाब के नागरिक को बिजली में थोड़ी राहत प्रदान करें। अब कितनी राहत देंगे, क्या देंगे, वो अपने मंत्रिमंडल से, अपने साथियों से बातचीत करके माने मुख्यमंत्री जी करेंगे। और पावर परचेज एग्रीमेंट्स के विषय में भी हम लोग हर वो संभव तरीका निकालेंगे कि जिससे कंज्यूमर को या पंजाब के लोगों को कम दाम पर, अपेक्षाकृत कम दाम पर, क्योंकि अकाली दल का एक बहुत ही कुकृत्य था कि उन्होंने पंजाब के लोगों के ऊपर एक ऐसा पावर परचेजिंग एग्रीमेंट थोपा जिसको कैंसिल करना, एकदम लॉक स्टॉक बैरल कैंसिल करना बड़ा कठिन काम है। उससे सारा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा, उससे पावर सप्लाई डिसरप्ट होने की संभावनाएं पैदा हो जाएंगी, बहुत सारी बातें पैदा हो जाएंगी। इसलिए हमने कहा कि आप सावधानीपूर्वक ऐसा करिए कि जिससे हम मैक्सिमम कंसेशन या मैक्सिमम उनको दबा करके उनसे पावर परचेज के जो दाम हैं उनको कम करवा सके, पंजाब के एक्सचेकर के ऊपर जो बर्डन है उसको घटाया जा सके, और जो घटोतरी हो उस लाभ को सीधे पंजाब के बिजली के कंज्यूमर्स को पास ऑन किया जा सके। ये पावर परचेज है। और मैंने फिर से मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है कि जो यहाँ के बस परमिटों को लेकर के बहुत सारी बातें हैं उन पर ज़रूर कार्रवाई करें। और उन्होंने कहा है कि पंजाब कांग्रेस ने भी इस विषय में उनको ज्ञापन दिया है और वो उसके सारे प्रॉस एंड कोन, सारे लीगल एंगल्स एग्जामिन करवा रहे हैं एंड ही विल टेक ए सुटेबल एक्शन ऑन दैट। तो यही कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो मुद्दे चर्चा में भी हैं, जो बातें चर्चा में हैं, और वो सब पर मेरी बात राजेंद्र बाजवा, सुरेंद्र रंधावा चेहरा लीडरशिप बदलने की बात कर रहे थे। कोई लीडरशिप बदली जाएगी या यही लीडरशिप 2022 की रहेगी? हमारी पार्टी के अंदर कुछ प्रोसीजर है, और मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं अपनी पार्टी के लोगों से मीडिया के माध्यम से वो नहीं करता, उनसे बातचीत नहीं करता। यदि उन्होंने कुछ कहा है तो मुझसे कहा है, और जो मुझसे कहा है वो लीडरशिप के सामने बातें साफ हैं, वो उनके सामने रखी गई है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे सारे लोग जो है मिलजुल करके काम करेंगे, और बातें आती हैं। आफ्टर ऑल एज जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज मेरी कुछ ड्यूटीज़ हैं, उन ड्यूटीज़ को मैं अपने तरीके से दूँ। सर, नाराजगी कैसे दूर होगी? जो मंत्रियों की नाराजगी है, जो देहरादून पहुंचे थे, उनकी नाराजगी कैसे दूर होगी? वो ये मैंने मुख्यमंत्री जी को उनकी नाराजगी के पहलुओं को बता दिया है, और उन नाराजगियों को दूर करना मुख्यमंत्री। सर, आपके इस दौरे के दौरान वो मुख्यमंत्री जी का आपके चंडीगढ़ दौरे के दौरान नवजोत सिद्धू दिल्ली पहुंचे, उस पर क्या कहना होंगे? नहीं हो सकता है उनका कुछ काम हो, मुझसे कल मुलाकात हुई थी और उन्होंने मुझको बता दिया था कि वो कल यहाँ नहीं। सर आपने कहा सर कैप्टन अमरिंदर सिंह 2022 के जो चुनाव है उसमें मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, इस बात पर हमारी पार्टी के अपने कुछ परंपराएं, कुछ एस्टेब्लिश नॉर्म्स हैं, हम उसी नॉर्म्स के अनुसार काम करेंगे, और उन नॉर्म्स के विषय में रोज मुझको वोट पीटने की आवश्यकता। साहब, जो आपने ये पॉइंट गिनाए हैं, ये तो आपने बोला कि नाराजगी सीएम देखेंगे, दूर करेंगे, लेकिन सर ये नाराजगी तो दूर हो, लेकिन सीएम को तो पहले या तो केंद्र सरकार के कुकृत्य हैं या अकाली दल के कुकृत्य हैं। हमने अमरिंदर सिंह जी से कहा है कि वो इनके कुकृत्यों को जितना सुधार सकते हैं, जितना रेक्टिफाई कर सकते हैं, उनको रेक्टिफाई करें ताकि पंजाब के लोगों को आवश्यक राहत मिल सके। जो आपकी डिस्कशन हुई है मुख्यमंत्री के साथ, ये आप सोनिया गांधी जी को भी इन्फॉर्म करेंगे इसके बारे में कि ये इंटरनल टसल का मामला कहाँ तक पहुँच चुका है, कैसे रिजॉल्व होगा? मैं तो उन्हीं से पावर लेकर के तो मैं तो उन्हीं का एक प्रकार से आई एम हर फेस हियर,
और तो मैं उन्हीं को रिपोर्ट करूंगा। राउत साहब नवजोत सिंह सिद्धू सारी परिस्थितियां, सारी बातें कांग्रेस प्रेसिडेंट को बता दी हैं और मैंने पार्टी लीडरशिप के साथ मंत्रियों और विधायकों को नसीहत दी है कि वो बाहर ना बोलें, उनको किस तरह से रिएक्शन? सर इसी के साथ जुड़ा सवाल है। जब मैं अपने ऊपर हाथ ना करो, आपका सबके कैमरा में आ रहा है कि पार्टी के लोगों से मुझे बात जो है मीडिया के माध्यम से नहीं करनी चाहिए, तो मैं समझता हूँ मेरे जो दूसरे सहयोगी हैं वो भी इस बात को ध्यान राउत साहब बयानबाजी से नुकसान हुआ है या कल भी कंटिन्यू रहेगा? आप चंडीगढ़ मैं कल जाऊँगा। राउत साहब नवजोत सिंह सिद्धू तो कह रहे हैं कि आप तो मुझको इतने प्यारे प्यारे सोने लगते हो। राउत साहब पीपीएस को लेकर आपने बात की, पीपीएस को नवजोत सिंह सिद्धू बार बार कह रहे हैं कि विधानसभा का जो सेशन है उसको एक्सटेंड किया जाए, लंबा किया जाए और बिल लाया जाए विधानसभा में, जैसे रिवर एग्रीमेंट उसको टर्मिनेट किया था, ये टर्मिनेट किए जाए। मेरी जो बात हुई है, देखिए लीगल जो रिवर एग्रीमेंट था वो दो राज्यों के बीच में एक एग्रीमेंट था जिसको केंद्र सरकार ने रेक्टिफाई किया और ये केंद्र सरकार के पास ये जो है जो पावर एग्रीमेंट है ये एक यूनिवर्सली डिजाइंड केंद्र सरकार का वो है मेमो है, उसके आधार पर सब राज्य करते हैं। तो इसलिए इसके और उसके फॉल आउट डिफरेंट तरीके के हैं, मगर विधानसभा में क्या करना है इस पर मुख्यमंत्री विचार करेंगे, मगर मैंने ये ज़रूर कहा है कि वो इतना कंपनियों को साफ तौर पर कह दिया जाना चाहिए दे शुड कम एज दे नेगोशिएट द रेट्स। एजी एडवोकेट जनरल ऊपर थे, डीजीपी ऊपर थे, एसटीएफ चीफ ऊपर थे, सारे अतुल नंदा भी थे, सारे अधिकारियों ने आपको डिटेल में सारे मुद्दे जो थे इनके ऊपर बताया है। मैं कांग्रेस वर्कर, मैं अपने चीफ मिनिस्टर को जानता हूँ, मैं अधिकारियों से क्यों बात करूँ? पर अधिकारियों ने आपके सामने मुख्यमंत्री को बताया होगा कि क्या क्या लेकुनाज हैं, क्या क्या लीगल। इट इज बिटवीन मुख्यमंत्री एंड हिज ऑफिसर। सर सिद्धू और ये तो हरीश रावत कहीं पर नहीं आता है। हरीश रावत अपने मुख्यमंत्री से बात करते हैं। सर क्या ये लड़ाई अब खत्म होके दोनों इकट्ठे दिखेंगे या फिर भी बयानबाजी चलती रहेगी? तुम जैसा चाहते हो वैसे। सर हमारे चाहने से नहीं कुछ होगा ना, क्या ये चीजें खत्म होंगी? आज के दिन भी दिल्ली है और जो आपने नुक्ते गिनाए इसी का वादा करके कांग्रेस सरकार सत्ता में आई, वो वादे पूरी नहीं हुए, इसी की खिलाफत मंत्री कर रहे हैं। सिद्धू आज के दिन दिल्ली चले गए, मुलाकात के लिए आए नहीं, तो आप कैसे इसे इकट्ठा करेंगे? मैं आश्वस्त करता हूँ कि जितना ज़्यादा हो सकेगा हम ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉਹ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਇਸ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੁਖਵੀਰ ਭੰਗੂ ਪਟਿਆਲਾ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੋ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਜਾਣੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਿਆਨ, ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ।